So, good morning, friends. This is Hitendra Soneji, founder, CEO, motivational speaker, and a corporate trainer. Um, I was just, few days back going through some article where I read this word, servant leadership. I've never heard about this word about servant leadership earlier. So I was wondering what it is. So I was eager to know more about it. So I studied about the servant leadership. So I found it very interesting and I thought, let me share this knowledge with you all. So what basically this servant leadership is? So we will try to, just share whatever knowledge I have and whatever I have just researched about it. So we at Will to Win Soft Skills Development Training Center, we specialize in many training programs. We specialize in soft skills, marketing and sales, motivational trainings, and entrepreneur development courses also for our business industries also. And we design training programs, as per your organization's requirements also. So we are into plenty verticals of trainings. So we will just start with our new topic, servant leadership. What exactly it is? Very, very exciting it is. When I read about it, so I was very much excited to know what it is, because many people know about it and many people don't know about it, as I didn't knew it. So I just started researching on this servant leadership. So I found that leading by walking alongside your team, that you have to, servant leadership, what he does, he leads the team by walking aside with them, साथ साथ चलना, अपने टीम के साथ साथ चलना. Then it's easy to lose sight of the ultimate goal when you are in the trenches, wrote Tony Donging in The Mentor Leader. So one of the author, Tony Dungy, he wrote in his book, The Mentor Leader, that you can easily lose the sight of your goals for the simple reason that we are under pressure, because leaders are always under pressure, always under pressure. हर बार वो टेंशन में ही रहते हैं, क्योंकि उनको क्या है, उनको एक ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव करना रहता है, लोगों के साथ मिलके काम करना और उस गोल को अचीव करना. तो उनके पास में ऊपर से भी प्रेशर होता है और नीचे से भी प्रेशर होता है. ऊपर से उनके जो टॉप बॉसेस होते हैं उनका भी प्रेशर है, और जो ग्रुप है जो उनके अंडर में काम करता है उनका भी प्रेशर रहता है. So there are lot of pressures, they're handling lot of pressures. So it is easy for them to lose the sight, right? So Mr. Diggi has spent a lot of time in trenches and at the same time has become a remarkable leader. So he was also one of an employee in an organization, and he was working as a leader. So he has gone through all the phases and he has written his experience in his book, The Mentor Leader. So that is why the reason that he embraces servant leadership. So that is why he has come up with this concept of servant leadership. So one of the definitions of leadership is organizing a group of people to achieve a common goal, which everybody knows. This is very common definition of a leadership. Now, if you reach your goal, then you must be a good leader, right? But obviously, when you achieve something, so you are a good leader. जब आप सबको मिलके साथ में आप काम कराते हो और कुछ अचीव करते हो, when you achieve together, right? When whole team achieves something great, so you are a good leader. Obviously, you are. Then I like this definition from an integrated theory of leadership. So there is one more definition of a leader: a process of social influence in which one person can enlist the aid and support of others in the accomplishments of a common goal. So it is a complete process of a social influence. That means a group में जब हम काम करते हैं, so we have to influence, यानी कि सबको एक साथ मिलके अपने को काम करना है. It is a process. कोई बड़ा गोल अचीव करना है तो एक अकेला इंसान वो अकेले उस गोल को अचीव नहीं कर सकता है. उस बड़े से गोल को अचीव करने के लिए अपने को क्या चाहिए?
टीम चाहिए. So we have to socialize in the team in which one person can enlist the aid and support of the others. So यानी कि उसमें क्या रहेगा, जब हम एक टीम बनाते हैं तो अपने को टीम के लिए क्या चाहिए, एक सपोर्टर चाहिए, यानी कि एक लीडर अपने को चाहिए, राइट. तो वो लीडर क्या करेगा, वो सबको एक साथ मिला के उस काम को कंप्लीट कराता है. अकम्प्लिशमेंट यानी कि एक कॉमन गोल, एक कॉमन टास्क को कंप्लीट कराना, वो एक लीडर की जिम्मेदारी हो जाती है. So that definition paints leadership as a means of working with others to complete a task which everyone shares. तो ये जो definition है, the leadership का definition है, बहुत ही simple है. वर्किंग टूगेदर यानी कि सबको एक साथ मिलके काम कराना एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, राइट. सो देयर इज मोर फोकस ऑन वर्किंग टूगेदर and less focus on results. Very, very important, this is the thing to be noted, that focus should be on working together, right. सबको साथ मिलके काम करने में फोकस होना चाहिए and less focus on results. रिजल्ट के ऊपर अपने को फोकस करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब साथ में मिलके काम करेंगे रिजल्ट तो आने वाला ही है, ऑटोमेटिक है, दैट इज ऑटोमेटिक. तो काम करना साथ में वो इंपॉर्टेंट है, राइट. तो फोकस ऑन वर्किंग टुगेदर इज मोर इंपॉर्टेंट. So I'm not saying results don't matter, but how you get there, that matters. And that is what leads us to the servant leadership model. So ये जो चीज है working togetherness, focus के साथ में काम करना, वो that leads us to the servant leadership model, कि हम वो एक अच्छा servant leadership model को कैसे adopt कर सकते हैं and how to lead our team. So what is servant leadership? Now, Robert K. Greenleaf first coined the phrase servant leadership in his 1970 essay, The Servant as a Leader. तो सबसे पहला जो बुक लिखी थी सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर in 1970 was written by the author Robert K. Greenleaf. So, however, it's an approach that people have used for centuries. लोगों ने इस मॉडल को एक्सेप्ट किया है और इसको इंप्लीमेंट भी किया है and people are successful. ये लीडरशिप जो है सर्वेंट लीडरशिप, it has been used by the people, by the organization since centuries. बहुत पुरानी चीज है, कोई नया चीज नहीं है. तो ये मुझे भी पता चला, इवन आई वाज सरप्राइज कि ये सर्वेंट लीडरशिप जो है इतने सालों से इट इज एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड एंड आई वाज नॉट नोइंग इट, एटलीस्ट आई वाज नॉट नोइंग इट. सो नाउ आई केम टू नो कि हाँ चलो ऐसा लीडरशिप भी होता है, क्योंकि हमने डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन ये सर्वेंट लीडरशिप क्या है, इट वाज वेरी मच न्यू टू मी. तो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड, मैं चलो उसके बारे में और रिसर्च करते हैं और थोड़ा पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में और थोड़ा कुछ पढ़ते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड. तो जब उसे मुझे पता चला कि ये तो बहुत पुरानी टाइम से चला आ रहा है, पुराने ऑर्गेनाइजेशंस जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, दे यूज्ड टू अडॉप्ट दिस सर्वेंट लीडरशिप मॉडल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव सक्सीडेड आल्सो. उनको कामयाबी भी मिली है ये मॉडल को अडॉप्ट करने से. एज अ सर्वेंट लीडरशिप यू आर अ सर्वेंट फर्स्ट, you focus on the needs of others, especially team members, before you consider your own. तो सबसे पहला जो सर्वेंट लीडरशिप है, he is first the servant, that is he is just focusing on the needs of others. वो क्या है, वो दूसरों की जरूरतों को पूरा करने पे लगा हुआ है, राइट. नाउ स्पेशली टीम मेंबर्स, क्योंकि उसके पास में लीडर है तो उसके पास में टीम तो होगी, तो ही इज फोकसिंग ऑन द टीम. लीडर का फोकस पूरा उसके टीम के ऊपर ही रहता है एंड वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो अपने टीम मेंबर्स को ही देता है, राइट. उनका ही ध्यान रखता है, उनको किस किस चीज की जरूरत है, उन जरूरत के ऊपर फोकस करता है और साथ में मिलके उनको काम कराता है और वो टास्क को अकम्प्लिश करता है, राइट. तो नाउ यू एक्नॉलेज अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव्स, राइट. तो उसमें क्या होता है, जो सर्वेंट लीडर है वो क्या करते हैं, वो दूसरों के जो उनके जो टीम मेंबर्स है उनके पर्सपेक्टिव्स के व्यू से वो देखता है, टू व्यू द सिचुएशन और व्यू एनी वर्क और एनी टास्क एज पर देयर पर्सपेक्टिव्स. दूसरे की नजर से देखना, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, उनकी नजर से देखना, समझना और उनको सपोर्ट करना. सो गिव देम द सपोर्ट दे नीड टू मीट देयर वर्क and personal goals, involve them in decisions where appropriate and build a sense of community within your team. Now this is very much new, build a sense of community, that is very much essential. जब हम फोकस की बात कर रहे हैं कि your focus should be on working together, your focus should be on the need of your team members, that is you are building a sense of community.
That is the sense of community within your team members. So every team member has to be built the sense of community for working together. एक दूसरे के perspectives को समझना, एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को समझना, राइट, एक दूसरे की बातों को समझना कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, क्यों बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है. दैट इज वी हैव टू बिल्ड दिस सेंस ऑफ कम्युनिटी. जब साथ में काम करना है तो अपने को उस सेंस को अपने को उस डेवलप करना है, राइट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करना है अपने अंदर. सो दिस लीड्स टू अ हायर एंगेजमेंट. तो जब हम सब साथ में, जब व्हेन वी हैव अ सेंस ऑफ कमिटमेंट और द सेंस ऑफ कम्युनिटी, तो दैट्स लीड्स टू अ हायर एंगेजमेंट. यानी कि एंगेजमेंट जो है, आपस में तालमेल जो है एकदम मजबूत रहता है टीम के अंदर. एंड मोर ट्रस्ट, एक दूसरे को प्रति विश्वास भी बना रहता है. एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, और अपने जो बॉन्डिंग्स है, अपने जो रिलेशनशिप्स है, अपने जो टीम मेंबर के साथ में जो ताल्लुकात है, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. एंड नॉट ओनली दिस, अदर स्टेक होल्डर्स के साथ में, यानी कि अलग जो अपने कंपनी में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, उन सबके साथ में अपना रिलेशनशिप जो है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है. इट कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज्ड इनोवेशन. और जब हम सबका तालमेल साथ में मिल जाता है, तालमेल के साथ में काम करते हैं, सूझबूझ के साथ में काम करते हैं, समझ के साथ काम करते हैं, तो अपने पास में न्यू आइडियाज जनरेट होती है काम करने को. देन वी हैव एन इनोवेटिव आइडियाज कमिंग अप, क्योंकि हर कोई जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अपने आइडियाज को. सो फ्रॉम दोस आइडियाज वी कैन जनरेट सम न्यू आइडियाज. सो इनोवेशंस जो है वो निकलता जाता है लोगों के दिमाग में से, राइट. सो सर्वेंट लीडरशिप इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल और टेक्निक एज सच, राइट. तो ये कोई लीडरशिप जो सर्वेंट लीडरशिप है, ये कोई स्टाइल या टेक्निक नहीं है. रेदर इट्स अ वे ऑफ बिहेविंग दैट यू अडॉप्ट ओवर द लॉन्गर टर्म. यानी कि ये जो है ना, इट इज अ वे ऑफ बिहेविंग, हाउ यू बिहेव एज अ लीडर विथ योर टीम मेंबर्स, हाउ यू कोऑर्डिनेट विद देम, how you communicate with them, how you take their view of points, उनके perspectives आप कैसे करते हैं, उनका behavior को आप कैसे accept करते हो, राइट, और उनको आप कैसे किस तरह से मोटिवेट करते हो काम करने के लिए, सबका तालमेल एक साथ आप कैसे बिठाते हो. दैट इज द थिंग यू लर्न फ्रॉम द लीडरशिप. जब आप लीडर है और लीडरशिप के अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं, तो जब आप काम करते हो ना, तो काम करते 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 ये क्वालिटी ऑटोमेटिक अपने अंदर डेवलप हो जाती है. दैट यू हैव टू डेवलप पर्पसफुली. So it complements democratic leadership styles, and it has similarities with transformational leadership, which is often the most effective style to use in business situations. So it is a complementary. ये जो है servant leadership, it is a complementary type of leadership. वो सबके साथ में मैच होता है, चाहे वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हो, या ट्रांसफॉर्मेशनल हो, या सिचुएशनल हो, या कोई भी स्टाइल का अपना लीडरशिप हो, वो हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सर्वेंट लीडरशिप को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसको मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल हम बना सकते हैं इन अवर बिजनेस सिचुएशंस. नो, बिजनेस के जो सिचुएशंस है वो अलग अलग होती है. एवरीडे सिचुएशंस आर नॉट सेम, सिचुएशंस कीप्स ऑन चेंजिंग. अपना जो टीम का जो बिहेवियर है, अपने टीम का बिहेवियर भी रोज सेम नहीं होता है, अपने टीम का बिहेवियर भी वो रोज रोज चेंज होता रहता है. सो यहाँ पे जब अपने को जब पता है कि एवरीथिंग चेंजेस, एवरीडे सिचुएशन चेंजेस, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सर्वेंट लीडरशिप को हम लोग जो है उस स्टाइल को हम लोग वहां पे हम लोग फिट कर देते हैं, तो वहां पे अपने यूज करने का, राइट. सर्वेंट लीडरशिप इज अ बिहेवियर, राइट, how you behave and how you accept the behavior of others and how you focus on working together with the team. That is important, right. So, and the level 5 leadership, which is where leaders demonstrate humility in the way they work. So the level 5 leadership जो है, it is very important to demonstrate, that is a humility. मतलब कि इंसानियत, जिसको हम बोलते हैं ना इंसानियत, क्योंकि हर एक लीडर के अंदर ने एक इंसानियत होना चाहिए. a leadership should दैट ह्यूमिलिटी, वो इंसानियत हमको दिखानी है अपने टीम मेंबर्स के साथ में. क्योंकि हर जब क्या होता है, जब टीम में इतने सारे लोग होते हैं, तो इतने सारे लोग हैं, तो सबकी जो सोच है ना एक जैसी नहीं होगी, सबकी सोच अलग होगी, राइट. कोई पॉजिटिव सोचेगा तो कोई निगेटिव भी सोचेगा, आपस में झगड़ा भी करेंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं अपना टीम के अंदर जब साथ में काम करते हैं. तो यहाँ पे जो लीडर का रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट. तो अपने को एक पहला तो इंसान समझना है कि जो अपने टीम जो में लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो सब ह्यूमन बींग्स है, ऑल आर ह्यूमन बींग्स, राइट. सब इंसान ही है सब.
तो उन इंसानों को अपने को समझने की कोशिश करनी है एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? Then the level 5 leadership is a concept developed in a book Good to Great that is authored by Jim Collins. अभी ये लेवल 5 लीडरशिप जो होती है ना, ये कंसेप्ट जो है ना, ये आपको उस बुक टू ग्रेट, एक ऑथर है जिम कॉलिंस, so he has written this book Good to Great about level 5 leadership. So level 5 leaders display a powerful mixture of personal humility and indomitable impossible to subdue or defeat will. यानी कि वो जो लेवल 5 के जो लीडर्स होते हैं ना, सो दे डिस्प्ले द पावरफुल मिक्सचर, यानी कि वो दो चीजों का जो मिक्सचर है ना वो दिखाते हैं, दे शो, दे डेमोन्स्ट्रेट। एक तो इंसानियत दिखाते हैं और दूसरा एक विल पावर दिखाते हैं कि हमको कोई हरा नहीं सकता। दे हैव गॉट अ वेरी हाई विल पावर, तो वो हाई विल पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इंसानियत के साथ में। सो दे आर इनक्रेडिबली एम्बिशियस। जो लेवल 5 के लीडरशिप है ना, दे आर इनक्रेडिबली एम्बिशियस। वो उनके अंदर में एक जोश, जुनून, पागलपन है काम करके दिखाने का। एम्बिशियस, दे आर वेरी मच एम्बिशियस, दे आर वेरी मच करियर ओरिएंटेड, प्रोफेशनल्स लोग हैं, दे आर हाईली प्रोफेशनल्स, बट देयर एम्बिशन इज फर्स्ट and foremost for the cause, for the organization and its purpose, not themselves. मतलब वो मतलब ही नहीं है कि खुद का काम निकालने के लिए लोगों को से काम कराते नहीं, वो जो काम कराते हैं ना लोगों से, वो सबके भले के लिए काम कराते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉज के लिए काम कराते हैं, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कॉज कराते हैं। So while level 5 leaders can come in many personality packages, काफी सारी चीजों का मिक्सचर है ये, so they are often self-efficacious to disappear completely, यानी कि थोड़ा अलग रहना, चुपचाप बैठना, क्वाइट रहना, रिजर्व रहना, थोड़ा शर्मीले टाइप के लोग रहते हैं, इवन दे आर शाय। सो एवरी गुड टू ग्रेट ट्रांजिशन इन रिसर्च बिगेन विथ अ लेवल 5 लीडर हु मोटिवेटेड द एंटरप्राइज मोर विथ इंस्पायर्ड स्टैंडर्ड्स देन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज, यानी कि उनके अंदर एक इंस्पिरेशन एक रहता है जो वो सबको मोटिवेट करते हैं, अपने खुद की इंस्पिरेशन से मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जब इंसान खुद इंस्पायर्ड होगा ना तभी वो दूसरे को मोटिवेट कर सकता है, राइट? सो दिस टाइप ऑफ लेवल 5 ऑफ लीडरशिप जो है ना, दे आर हाईली इंस्पायर्ड, यू नो, बाय देयर ओन एम्बिशन. सो नो मैटर हाउ यू लुक एट इट, द सर्वेंट लीडरशिप मॉडल इज द परफेक्ट मॉडल फॉर एनी इंडस्ट्री. कोई भी इंडस्ट्री के अंदर ये सर्वेंट लीडरशिप जो है मॉडल, ये परफेक्ट फिट है, हर जगह पे ये फिट हो जाता है. So remember that servant leadership is about focusing on other people's needs, not their feelings. Now यहाँ पे जरूरतों को समझना है, उनके फीलिंग्स की हम बात नहीं कर रहे हैं. अब वहां पे जरूरत, यानी कि काम करने के टाइम पे किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है अपने टीम को. सपोज फॉर एग्जांपल किसी को नॉलेज की जरूरत है तो हम नॉलेज देंगे, किसी को रिसोर्सेज की जरूरत है तो हम रिसोर्सेज देंगे. उनको क्या चाहिए उस टाइम पे, पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जहां पे वो जॉब कर रहे हैं, वहां पे उनको किस चीज की मदद चाहिए, किस चीज की जरूरत है, वो जो सर्वेंट लीडर है वो फटाफट में जाके उनकी नीड को फिलफिल करता है, ताकि वो काम रुके नहीं, अपना अपना काम आगे बढ़ता जाए. ऑल्सो डू नॉट रिलाई ऑन इट्स एक्सक्लूसिवली, यूज इट alongside styles by transformational leadership. यानी कि वो क्या करते हैं, दे डू नॉट ओनली रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन सर्वेंट लीडरशिप मॉडल, उसके साथ में वो अपना ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को भी वो लोग अडॉप्ट करते हैं. तो जो सर्वेंट लीडरशिप मॉडल है ना, वो साइड साइड में चलता है, अभी पैरेलल है. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी चल रहा है, तो अपना जो सर्वेंट लीडरशिप मॉडल है वो भी साथ साथ में चल रहा है. बोथ आर पैरेलली, मॉडल्स आर वर्किंग टुगेदर, दोनों स्टाइल साथ में चल रहे हैं. वेयर यू डेवलप एन इंस्पायरिंग विजन for the future, right? Now motivate people to deliver this, manages its implementation and build an ever stronger team. यानी कि इनका काम क्या रहता है लीडरशिप का, वो लोग जो है ना वो बहुत ही एक इंस्पायरिंग विजन्स बनाते हैं फ्यूचर का. दे कैन लुक, विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर, राइट? तो विजन जो एक चीज है ना, वो इंसान का बहुत ब्रॉड होना चाहिए. लीडर का जो विजन है वो बहुत बड़ा विजन है. they can see through many things, right? फ्यूचर में क्या करना है और कैसे करना है वो लीडर को पता है, और वो करने के बीच टाइम पे क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, दैट आल्सो लीडर नोस. तो लीडर क्या करता है, पहले से तैयारी कर लेता है उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए. क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के साथ में रेडी रहता है अपना लीडर.
राइट. सो उसको हाउ टू मैनेज द इम्प्लीमेंटेशन, वो इम्प्लीमेंटेशन का भी प्लानिंग जो है वो लीडर के पास में रेडी रहता है. एंड बिल्ड एन एवर लास्टिंग स्ट्रॉन्गर टीम, एक मजबूत टीम बनाता है अपना एक लीडर. Then how to become a servant leader? So once you have decided to prioritize over others people's needs over your own in the long term, you can work on developing your skills in each area. Let's look at how you can do this. Now एक बार अभी आपने सोच लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा जो अभी मैं जो लीडरशिप अभी मैं कर रहा हूं, जो मेरा जो भी स्टाइल है मेरा, अब उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उसके साथ साथ जो अपना लीडरशिप है उसको छोड़ना नहीं है, वो स्टाइल को छोड़ना नहीं है, उस स्टाइल के साथ साथ में सर्वेंट लीडरशिप को अडॉप्ट करना, वो मॉडल को अडॉप्ट करना. राइट. सो नाउ अपने को क्या प्रायोरिटाइज करना है, वी हैव टू प्रायोरिटाइज अदर पीपल्स नीड, यानी कि मेरी जो टीम है उनकी क्या जरूरत है वो भी उनको समझने की कोशिश करना. राइट. तो उनको समझना है और उनकी जरूरतों को पूरी करना, ये स्किल्स अपने को डेवलप करना, ये रोज दिस इज वेरी डेली, दिस इज ऑन द डेली बेसिस. सर्वेंट लीडरशिप की जो क्वालिटी है, ये जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ये डेली होना चाहिए, ये डेली होता है. इट इज एन स्किल, राइट, इट इज एन स्किल. सो लेट्स लुक हाउ यू कैन डू दिस. सो अकॉर्डिंग टू लैरी सी स्पियर्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द रॉबर्ट के ग्रीनलीफ सेंटर, तो उन्होंने एक अपना सेंटर भी खोला था अपने खुद के नाम से, रॉबर्ट के ग्रीनलीफ सेंटर खोला था. तो उनका जो फॉर्मर जो एक प्रेसिडेंट था, लैरी सी स्पियर्स, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ डेवलप किया. राइट. सो देयर आर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वेंट लीडरशिप. तो कुछ 10 लीडरशिप कैरेक्टर्स है जो अपने को अडॉप्ट करने हैं. Right, so we have to learn this 10 characteristics to become a good servant leader. Right. So number one skill is listening skill. You will serve people better when you make a deep commitment to listening intently to them and understanding what they are saying. यानी कि सबसे पहला जो है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जो है ना, सबसे पहला जो स्किल है ना, वो है लिसनिंग स्किल. या कम्युनिकेशन यानी कि बोलचाल की कला. राइट. हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. नाउ बिफोर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, उससे पहला अपने को क्या सीखना है, उससे पहला अपने को जो है ना, जो स्किल सीखना है वो है लिसनिंग स्किल्स. यू हैव टू डेवलप दिस स्किल्स. राइट. टू इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स, गिव पीपल योर फुल अटेंशन दे दो उसको, यानी कि उसकी बातों को ध्यान से सुनो. अभी आपके टीम मेंबर में से कोई एक मेंबर आपसे बात कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आराम से पेशेंटली उसकी बात को सुनना है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ गलत बोल रहा है, तो भी पहला उसकी बात खत्म होने दो. डोंट इंटरप्ट. राइट. तो पूरा अटेंशन की उसकी बात सुनो. टेक नोटिस ऑफ देयर बॉडी लैंग्वेज, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका हाव भाव कैसा है, उनका टोन कैसा है, किस टोन में बात कर रहे हैं, पूरा ऑब्जर्व करो. देन अवॉइड इंटरप्टिंग देम. कभी भी बीच में कोई भी आपके टीम मेंबर या कोई भी हो जो आपसे बातचीत कर रहा है, उसको किसी को भी इंटरप्ट नहीं करना है, बीच में रोकने का नहीं है, टोकने का नहीं है. लेट हिम फिनिश फर्स्ट. उसको सामने वाले को जो बोलना है ना, उसको पहला चांस दे दो बोलने का. यू बी द गुड लिसनर. राइट. दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर. The leaders are always a good listeners without interrupting others. किसी को इंटरप्ट नहीं करना है, उनकी बात को पूरी सुनना है, समझना है, उसके बाद अपने को बोलना है. राइट. सो अवॉइड इंटरप्टिंग देम बिफोर दे हैव फिनिश्ड स्पीकिंग एंड गिव फीडबैक ऑन व्हाट दे से. यानी कि उन्होंने क्या बोला उसको पहला सुनना है, सुनने के साथ में समझना है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला. अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लिसनिंग. Understand what the other person is trying to say, then it will be easy for you to reply them in the same form. तो उसको हम उसी तरीके से जवाब दे सकेंगे जिस तरीके से उसने अपने से बात किया. उसको जो चीज चाहिए हम उसको वही चीज का सॉल्यूशन देंगे. अगर हम अच्छी तरह से नहीं सुनेंगे, वो बोल कुछ और रहा है, हम जवाब कुछ और दे रहे हैं, so again there we will be going into conflicts or rather into arguments. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे बिकॉज ऑफ पुअर लिसनिंग. So don't be a poor listener, be a good listener. Then number 2, you have to empathize. The servant leaders strive to understand other people's intentions and perspectives.
यानी कि दो चीजें होती है, एक होता है सिंपैथी और दूसरा होता है एम्पैथी। तो सिंपैथी में ओ आई एम सॉरी फॉर यू, ओहो बेचारे के साथ में ऐसा हो गया, यानी कि व्हाट वी आर शोइंग द सिंपैथी, राइट। ओ बेचारा बीमार हो गया, राइट। सो वी आर शोइंग सिंपैथी, लेकिन अपने को सिंपैथी नहीं, अपने को एम्पैथी दिखानी है अपने टीम मेंबर्स के साथ में बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, राइट। उनका इंटेंशंस क्या है, उनका पर्सपेक्टिव्स क्या है बोलने के पीछे, राइट। व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू, then what are their intentions behind their talks? So you have to understand those intentions, so you can be more empathetic by putting aside your viewpoint temporarily। अपना अंदाजे को साइड में रखो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों को है ना अंदाजा लगाते हैं, we assume lot of things। इंसान कुछ बोलता है उससे पहले हम लोग अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं, ये क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, मुझे सब पता है। बट वी आर ऑलवेज रॉन्ग, assumptions are always wrong, because हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच के देखो, ऑन देयर पॉइंट ऑफ व्यू आप जस्ट थिंक इट ओवर कि व्हाट दे वांट टू से। अपने अपने व्यू ऑफ पॉइंट को टेम्पररीली साइड में रखो, वैल्यूइंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रोचिंग सिचुएशंस विद अ ओपन माइंड। अपने माइंड को ओपन करो एंड वेलकम देयर सजेशंस, और या कुछ वो लोग अपने को दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, या कोई सजेशंस दे रहे हैं, कोई सॉल्यूशंस दे रहे हैं, काम के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं, अपने से कुछ आइडिया शेयर करना चाहते हैं, तो लेट देम स्पीक, यू नो, अलाउ देम टू स्पीक। डोंट अज्यूम कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इसको ऐसा नहीं, इसको शायद काम नहीं करना है बराबर से, इसके लिए वो ऐसा बोल रहा है, राइट। तो हम लोग बहुत सारी चीजें अज्यूम करते हैं, सो डोंट अज्यूम, राइट। अपने अजम्पशन को साइड में रखो और सामने वाला क्या बोलना चाहता है, क्यों बोलना चाहता है, उसको समझने की कोशिश करो। उसके बाद में अपने को उस बात करनी है उस इंसान के साथ में। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज हीलिंग। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, दिस इज अ रियलिस्टिक, रिलेट्स टू द इमोशनल हेल्थ एंड होलनेस ऑफ पीपल एंड इन्वॉल्व्स सपोर्टिंग देम बोथ फिजिकली एंड मेंटली। तो अभी नाउ एज अ लीडर, नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर टीम, राइट। तो जब हम लोग अपने काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो अपने टीम का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही है। नाउ उनकी फिजिकल एंड मेंटल इन्वॉल्वमेंट को भी सपोर्ट करना है। नाउ वी हैव टू सपोर्ट देम। फिजिकली भी फिट होना चाहिए अपने आदमी, मेंटली भी फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा, तभी तो वो काम कर सकेगा, राइट। तो उसके फिजिक का भी अपने को ध्यान रखना है और उसके मेंटल हेल्थ का भी अपने को ध्यान रखना है। नाउ फर्स्ट मेक श्योर दैट योर पीपल हैव द नॉलेज। सबसे पहली बात, जरूरी बात, जो टास्क अपने को मिला है काम करने का, ऑर्गेनाइजेशन का जो हम काम कर रहे हैं, क्या उसका नॉलेज मेरे टीम मेंबर के पास में है, सबके पास में है कि नहीं है, पहला वो देखना है। नहीं है तो उसको दो, राइट। सो योर शेयर द नॉलेज, राइट। उस काम का नॉलेज शेयर करना है। देन सपोर्ट देम एंड गिव देम द रिसोर्सेज दे नीड टू डू देयर जॉब, राइट। सिंपल चीज है। नॉलेज नहीं है, नॉलेज दे दो, उनको सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के बाद में उनको किन किन चीजों की जरूरत है, उनको वो चीजें दे दो। गिव देम व्हाट दे रिक्वायर टू डू देयर जॉब इफेक्टिवली एंड दैट दे हैव अ हेल्दी वर्क प्लेस। अपना जो वर्क प्लेस है ना उसको हेल्दी बनाना है। एनवायरमेंट है ना अपना हेल्दी होना चाहिए। वर्क एनवायरमेंट शुड बी गुड। मजा आना चाहिए अपने को साथ में मिलके काम करने में, राइट। So then take steps to help them be happy and engaged in their roles. Now take steps to help them. अपने को क्या उनको मदद करना चाहिए। Every time, every situation में, every day we have to help our team members. किसी को भी अपने हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो लीडर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प देम एंड मेक देम हैप्पी। भाई खुश, मजा आया काम करने के साथ, मेरे साथ में काम करने का मजा आया ना, ओके वेरी गुड। एंड एंगेज देम इन देयर रोल। उनको काम में एंगेज रखो, राइट। उनका माइंड को एंगेज रखो, फोकस रखो उस काम के ऊपर ही जो काम अपने को करना है। नाउ यू कुड आल्सो यूज अ टूल सच एज अ ट्रिपल बॉटम लाइन। ये भी कुछ नया चीज मैंने सुना, पहली बार सुना है ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है। सो ट्रिपल बॉटम लाइन एक्चुअली इट इज अ थ्री पीस, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट। यानी कि थिंक अबाउट द पीपल यू आर वर्किंग विथ, देन थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट एंड अबाउट द प्लैनेट दैट इज द अर्थ जहां पे हम लोग जी रहे हैं। अब तो अपने एनवायरनमेंट का भी अपने को ध्यान रखना है। तो इन तीन चीजों को अपने को ध्यान में रखना है, जिनको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन। टू थिंक अबाउट हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द पीपल यू लीड एंड द कस्टमर्स यू सर्व, राइट। तो अपने को ये थ्री पीस के ऊपर भी काम करना है, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट। देन सेल्फ अवेयरनेस जो सबसे जरूरी है। सो सेल्फ अवेयरनेस इज द मैकेनिज्म टू चेंज वंस लाइफ।
अपने जिंदगी को पहले बदलना, पहले अपने आप को देखना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने आप को नहीं देखते, हम लोग दूसरों को देखना चालू कर देते कि दूसरा इंसान क्या करता है, उसके अंदर कितनी कमियां हैं, हम लोग कमियां ढूंढना चालू कर देते हैं। लेकिन नहीं, अपने को पहला अपनी कमियों को देखना है, अपने अंदर क्या है उसको देखना है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू लुक एट योर सेल्फ, राइट। थिंक डीपली अबाउट योर इमोशंस एंड बिहेवियर, आपका इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर कैसा है, एंड कंसीडर हाउ दे अफेक्ट द पीपल अराउंड यू एंड अलाइन विथ योर वैल्यूज। आपके बिहेवियर से क्या किसी को, दूसरों को दुख हो रहा है क्या, और आर पीपल हैप्पी विथ योर बिहेवियर? पहला चेकआउट विथ योर ओन बिहेवियर। You can become more self-aware by knowing your strengths and weaknesses and asking for other people's feedback on them। यानी कि पहला अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने खुद को जानने की कोशिश करो कि मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, राइट, मेरी प्लस पॉइंट क्या है, मेरी माइनस पॉइंट क्या है। पहला खुद को देखो कि मैं क्या हूं, मेरे पास कितना नॉलेज है, राइट। तो मेरे पास में कम नॉलेज है तो मेरे को और नॉलेज लेना पड़ेगा। मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, अपने कमियों को ढूंढो और अपने कमियों को दूर करना है, राइट। और मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटीज है, क्या स्ट्रेंथ्स है, फाइंड आउट योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड ओन वीकनेसेस। So also learn to manage your emotions so that you consider how your actions and behavior might affect others. Learn to manage your emotions, अपने emotions को control करना है। अभी जो डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस है, तो सबसे पहला जो इमोशंस आता है ना, वो गुस्सा, एंगर। गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, कोई कोई कुछ अपन से बात करता है ऊंची आवाज में, गुस्सा आता है। कोई गलत तरीके से बात करता है, गुस्सा आता है। कोई अपने सामने कोई गलत काम करता है, अपने को गुस्सा आ जाता है। यानी कि अपने को गुस्सा बहुत तुरंत जल्दी आ जाता है। तो यू हैव टू कंट्रोल दैट इमोशंस, राइट, एंड सी हाउ यू रिएक्ट। गुस्से से अपना जो बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर खराब हो जाता है। तो अगर हम गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो अपना बिहेवियर भी अच्छा रहेगा। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ आवर इमोशन। ऐसे बहुत सारे इमोशंस है अपने अंदर, तो जो अपने बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, और अपने बिहेवियर से किसी दूसरे को परेशानी भी हो सकती है। So then fifth characteristic is persuasion, that servant leaders use persuasion rather than their authority to encourage people to take actions, right। अब वो क्या करते हैं, सर्वेंट लीडरशिप, दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। दूसरों को इनकरेज करने से पहला वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, और उनको क्या, सेल्फ एक्चुअली बोले ना तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बना देते हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट यानी कि खुद से काम करना, खुद की जिम्मेदारियों को समझो, अपने खुद की जिम्मेदारियों को समझो और अपनी खुद की जिम्मेदारियों को निभाओ। दे ऑल्सो एम टू बिल्ड कंसेंसस इन ग्रुप्स सो दैट एवरीवन सपोर्ट्स डिसीजंस। यानी कि सबके साथ में मिलके जब हम काम करते हैं ना, कनेक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, तो ये कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक ग्रुप डिस्कशन हम लोग करें और हम लोग एक डिसीजन के ऊपर हम लोग सब जो आते हैं, एक निर्णय लेते हैं, तो उस निर्णय के ऊपर, एक डिसीजन के ऊपर सबका सपोर्ट होना चाहिए, राइट। नहीं तो क्या होता है, जब कोई डिसीजन लेता है ना, तो आधे लोग अपोज करते हैं और आधे लोग फेवर में हो जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अपने को ये देखना है कि अपने डिसीजन के ऊपर ना कोई अपोज ना हो, राइट, सब अपने फेवर में हो, डिसीजन अपने फेवर में हो। तो डिसीजन फेवर में कब होगा, जब साथ में मिलके जब हम लोग डिसीजन लेंगे तभी, राइट। So there are many tools and models that you can use to be more persuasive without damaging relationships or taking advantage of others। यानी कि दूसरे का फायदा अपने को नहीं उठाना है और दूसरे के साथ में रिलेशनशिप भी डैमेज नहीं करना है, ये अपने को ध्यान में रखना है। जब डिसीजंस लेने हैं तो इट शुड बी सबके फेवर में होना चाहिए डिसीजंस। So you should also build your expert power। When people perceive you as an expert, they are more likely to listen to you when you want to persuade or inspire them। तो एक सबसे पहला जो है ना, लोगों का जो विश्वास है ना, वो अपने को जीतना है। तो जब हम लोगों का विश्वास जब हम जीतते हैं ना, तब लोग अपने पर विश्वास करने लगते हैं और अपने डिसीजन को वो लोग मानते हैं और वो लोग उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं, राइट। So that kind of high trust we have to develop। Then conceptualization, now this characteristic relates to your ability to dream great dreams। सपनों को देखो, लेकिन बड़े सपनों को देखो, so that you look beyond day to day realities to the bigger picture। अपने को एक बड़ी पिक्चर बनानी है, छोटी पिक्चर नहीं। छोटी पिक्चर तो हमने बना ली ना, एक बड़ी पिक्चर, यानी कि जैसा हमने बोला ना, विजन, ए लीडर्स विजन, लाइक एक लीडर एक विजन देखता है, एक सपना देखता है, एक बड़ा सपना देखता है और बहुत बड़ा सपना देखता है। और वो बहुत बड़ा सपना किसके लिए होता है, इट इज इन द फेवर ऑफ
द ऑर्गेनाइजेशन, सबका भला हो, अपने टीम का भी भला हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी भला हो. सो इफ यू आर अ सीनियर लीडर in your company, work through and develop a robust organizational strategy. यानी कि अपने को ऐसा स्ट्रेटेजी बनाना है कि सबके सपने साकार हो सके. Then whatever level you are at, now create mission and vision statements. ये बहुत जरूरी है to create mission and vision statements for your team. एक ऑर्गेनाइजेशन का तो होता ही है विजन मिशन स्टेटमेंट. अभी हम क्या करेंगे एज अ लीडर, हम लोग है ना एक अपना खुद का भी विजन और मिशन स्टेटमेंट बना देंगे अपने टीम को लेके, एंड मेक इट क्लियर हाउ पीपल्स रोल्स टाई इन विथ योर टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि जो भी हम विजन मिशन स्टेटमेंट अपने टीम के लिए बनाएंगे ना, वो इट शुड बी अलाइंड विथ आवर ऑर्गेनाइजेशंस विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, राइट, ताकि उस रोल में सब फिट हो सके, अपना टीम जो है ना उस रोल में फिट हो सके. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है, टास्क कंप्लीट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम को मिली है, दे शुड बी इंगेज्ड इन दैट, राइट. उनका फोकस वहां पे ही होना चाहिए. एंड ऑल्सो डेवलप लॉन्ग टाइम फोकस so that you stay motivated to achieve your more distant goals without getting distracted. बहुत जरूरी है. इंसान जब बड़े गोल बनाता है ना, बड़े बड़े गोल्स बनाता है, तो थोड़े से उसके ऊपर काम करता है. काम करने के बाद में वो क्या होता है, इंसान डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, फिर दूसरे गोल की तरफ चला जाता है, राइट. तो अपने को दूसरे गोल की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. अपने को पहला एक ही गोल के ऊपर अपने को फोकस करना है. सिर्फ अपने को नहीं, अपने टीम वालों को भी विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे. तो विजन और स्टेटमेंट जो है ना, स्टेटमेंट्स वो डेली मेमोराइज कर देने का, डेली अपने टीम के साथ में इसको अपने को रिपीट करते रहना है उसको, सो दैट उनका जो फोकस है वो फोकस मेंटेन रहे उस गोल को अचीव करने के, जो लॉन्ग टर्म गोल है अपना, राइट. ताकि कोई भी हम या अपने टीम मेंबर जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए. देन foresight. Now foresight is when you can predict what's likely to happen in the future by learning from past experiences, identifying what's happening now, and understanding the consequences of your decisions. Now a leader should have a good foresight. Now you can predict the things what is going to happen in future. अभी भविष्य में क्या होने वाला है अपना काम को लेके, अपने लाइफ को लेके नहीं, अपने काम को लेके हम बात करते हैं कि अपने काम को लेके भविष्य में क्या हो सकता है, बेहतर क्या हो सकता है, अच्छा क्या हम कर सकते हैं फ्यूचर में. अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखो कि पास्ट एक्सपीरियंस में हमने क्या गलतियां की, व्हाट मिस्टेक्स डिड वी मेक ड्यूरिंग अवर पास्ट एक्सपीरियंस. तो अपने को क्या करना है, जो अभी अपना जो नाउ है, नाउ दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट. उस प्रेजेंट मोमेंट में वी हैव टू रेक्टिफाई दोस मिस्टेक्स. पास्ट में जो गलतियां की है ना, उस गलतियों को प्रेजेंट मोमेंट में दोहराना नहीं है. वी डोंट हैव टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट, राइट. तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में उस गलतियों को सुधारना है, रेक्टिफाई करना है, आइडेंटिफाई इट व्हाट इज हैपनिंग नाउ एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर डिसीजंस. और उसको अपने को सुधारना है और उसको अपने को डिसाइड करना है कि मेरे को अभी कभी क्या करना है, सो दैट आवर फ्यूचर इज ब्राइट, राइट. सो पास्ट इज एन एक्सपीरियंस टू बी यूज्ड today for your better tomorrow. So you can use tools such as SWOT analysis and PEST analysis to think about your current situations and environment, while scenario analysis helps you understand how the future could play out, right. So we have to do a lot of SWOT analysis and PEST analysis. वो सब अपने को करना है. अपना टुडे अभी का जो सिनेरियो है, सिनेरियो को एनालाइज करना है. एनालाइज करने के बाद में उसको अपने को शॉर्ट एनालाइज करना, क्या क्या अपने को करना है अपने. देन वी हैव टू रेक्टिफाई दोस मिस्टेक्स एंड मूव अहेड इन लाइफ. देन यूज द ओरा पापा चेकलिस्ट. व्हेन यू मेक अ डिसीजन टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस and make sure that you have considered all the angles. Now it is a one kind of decision making skill. ये भी मैंने भी पढ़ा कहीं पे, मुझे अच्छा लगा ये ओरा पापा चेकलिस्ट, पहली बार सुना मैंने भी. आई वाज वेरी मच एक्साइटेड. कुछ नया नया सीखने को मिलता है ना, मजा आता है. सो आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स. तो उनको मैं एक्सपोज करता रहता हूँ और उनको पढ़ता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ उन सब नई नई चीजों के ऊपर. आई एम लविंग इट. जो चीज मेरे को पहला नहीं आती है और अब मैं कुछ नया सीखता हूँ, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, मजा आता है. सो अपग्रेड करना अपने आप को, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना. तो ये वर्ड मैंने कभी सुना नहीं था, ओरा पापा चेकलिस्ट. तो वो क्या है, तो उसके बारे में भी थोड़ा मैंने जानने की कोशिश की, रिसर्च करने की कोशिश की, तो पता चला. तो वो जो है ना अपने एक डिसीजन लेने में काम आता है अपने को.
टू लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना, उसमें से सीखना, उसमें से सीखना, राइट, कि पिछली क्या क्या गलतियां की है, वो गलतियों को दोहराना नहीं है। वी डोंट हैव टू रिपीट द मिस्टेक ऑफ आवर पास्ट, व्हाट वी हैव डन, राइट। तो अभी में उसको अपने को करेक्ट करना और अपने को आगे बढ़ना। तो थोड़ा सा अपन इसके भी देख लेते हैं। ऑल्सो लर्न टू ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। इफ योर इंस्टिंक्ट इज टेलिंग यू दैट समथिंग इज रॉन्ग, लिसन टू इट। अपने इंट्यूशन को भी थोड़ा सा विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, राइट। कभी कभी इंट्यूशंस बोल देती है कि नहीं यार ये चीज गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तो रुक जाओ नहीं करने का, राइट। कभी इंट्यूशन बोलता है नहीं नहीं यार अपने को ये चीज करेंगे तो सही रहेगा, तो वो कर देने का। समटाइम्स क्या होता है कि अपने को जो सही लगता है ना, वो कभी गलत हो जाता है, और जो लगता है कि ये गलत है वो सही हो जाता है, राइट। बहुत होता रहता है ऐसा, राइट। देन गुड डिसीजन लीड्स टू सक्सेस, but sometimes even the most experienced people make bad decisions and the cost of this can be devastating। यानी कि गुड डिसीजन लीड्स टू सक्सेस, अगर आपका डिसीजन अच्छा है तो आपको कामयाबी मिलेगी, बट समटाइम्स द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल मेक बैड डिसीजंस। जो बहुत बहुत जो बोलते हैं ना महारथी लोग, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, 25 साल का 40 साल का एक्सपीरियंस है, इवन दे मेक रॉन्ग डिसीजंस, बिकॉज एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, everybody is a human being and everybody is made to bound to make the mistakes, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस मिस्टेक से वो सीखना, उसको रेक्टिफाई करना और आगे बढ़ना, राइट। और कभी कभी कोई गलत डिसीजन इट कॉस्ट, कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है अपने को। तो ओरा पापा जो चेक लिस्ट है ना, जो अपने को डिसीजंस लेने में मदद करता है, तो उसका चेकलिस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटीज, क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके अंदर क्या रिस्क है, अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या रिस्क है वो देखने का, ऑल्टरनेटिव्स क्या है उसका, देन पास्ट एक्सपीरियंस में हमारा क्या है, अच्छा एक्सपीरियंस है, खराब एक्सपीरियंस है, एनालाइज दोस एक्सपीरियंसेस, उसको एनालाइज करो, जो अच्छा है उसको यूज करो और जो खराब है उसको रेक्टिफाई करो। देन पीपल, राइट, पीपल, अपने आसपास में कितने लोग थे, अभी कौन कितने लोग हैं। देन अलाइनमेंट, गेट अलाइंड, aligned with the people, aligned with the vision and mission statement of your organization, alignment अपने को सीखना है। तो ये ओरा पापा चेकलिस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सो हाउ डू यू इंश्योर यू आर डूइंग एवरीथिंग इन योर पावर टू मेक ग्रेट डिसीजंस एट वर्क। नाउ कैसे कैसे सोचेंगे आप, कैसे करेंगे? सो हाउ डू यू इंश्योर यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, राइट। So this is where the Ora Papa checklist can help you। आप चेक करो, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले तो इस ओरा पापा चेकलिस्ट को एक बार आप देख लेना कि क्या अपॉर्चुनिटी है, रिस्क क्या है, ऑल्टरनेटिव्स क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या हुआ था जब मैंने ये डिसीजन लिया था, पास्ट में कभी मैंने ये डिसीजन लिया था तो अच्छा भी हो सकता है, और इस टाइम पे अगर सिचुएशन में वही सेम डिसीजन लेंगे तो शायद बाउंस बैक भी हो जाए, राइट। तो उसको एनालाइज भी करना है, किन लोगों के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अलाइनमेंट क्या है, वो सब सीखना है। तो यू हैव टू चेक लिस्ट दिस। ओरा पापा हाईलाइट्स 7 key factors to consider when you are making an important decision: opportunities, risk, alternatives, past experience, analysis, people, and alignment. Then 8th is stewardship. Stewardship is about taking responsibility for the actions and performance of your team and being accountable for the role team members play in your organizations। अभी ये और एक कुछ नया अपने को सुनने में आया है। एक तो हमने स्टेवर्ड, तो ये वर्ड बहुत कॉमन है क्योंकि अपने को एक ही चीज पता है, मेरे को तो एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ, अगर स्टेवर्ड अब बोले तो एक वेटर, हम लोग सोचते हैं कि एक वेटर को हम लोग स्टीवर्ड बोलते हैं, राइट। तो सबको पता है, लेकिन ये स्टीवर्डशिप क्या है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वेटर, राइट। सो स्टीवर्डशिप जो है ना, इट इज अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को लेना और उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना, उसको इंप्लीमेंट करना और परफॉर्मेंस लाना, टीम का परफॉर्मेंस को बढ़ाना, एंड बीइंग अकाउंटेबल फॉर द रोल द टीम मेंबर्स प्ले, यानी कि अपने हर एक टीम मेंबर की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। एक लीडर, जो स्टीवर्डशिप है ना, वो क्या हो गया, एक लीडर हो गया। एक लीडर है तो उस लीडर को क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शंस, खुद के एक्शंस के लिए और खुद के टीम मेंबर्स के एक्शंस के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए और अपने टीम के परफॉर्मेंस के लिए भी जिम्मेदार कौन है, लीडर ही होता है। देन व्हाटएवर यू आर, a formal leader or not,
You have a responsibility for the things that happen in your company. You are responsible. आप चाहे छोटे लीडर हो या बड़े लीडर हो, फॉर्मल लीडर हो या इनफॉर्मल लीडर हो, टेम्पररी लीडर हो या परमानेंट लीडर हो, you are responsible for the things that is happening in your organization, right? So take time to think about your own values as well as those of your organization, so that you know what you will and won't stand for. So take time out to think about your own values. आपने खुद के लिए क्या values create किए हैं, right? As well as the organizations के आपके लिए आपकी क्या values है, what values you have created for yourself, for your organization, right? And where you stand. So also lead by example by demonstrating the values and behaviors that you want to see in others. आप दूसरों में क्या वैल्यूज देखते हैं, दूसरे में क्या बिहेवियर आप चाहते हो, एक्सपेक्ट क्या करते हो दूसरों से, राइट? तो पहले खुद वैसा बन के देखो. यू हैव टू सेट द एग्जांपल्स. आप पहले एक वैल्यू क्रिएट करो, खुद की वैल्यू क्रिएट करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने टीम के अंदर. देन एग्जिबिट योर गुड बिहेवियर, योर पॉजिटिव बिहेवियर टू अदर्स. जो आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी इज्जत करे, तो पहले आपको सामने वाले की इज्जत करनी पड़ेगी, राइट? And have the confidence to stand up to people when they act in the way that isn't aligned with them. So आपकी जिम्मेदारी बनती है, right? अगर आप चाहते हो कि लोग आप पे भरोसा करें, तो पहले आपको लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा. You have to trust them, then only your people will trust you. If you want them that people should respect you, then you have to first respect them, then the people will start respecting you. यानी कि जो भी करना है पहले लीडर को करना है. द फर्स्ट एक्शन शुड बी टेकन बाय द लीडर टू सेट एन एग्जांपल फॉर देयर अदर पीपल्स. जो उनका टीम है उनके लिए अपना एक एग्जांपल सेट करो, बाद में यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स. Then commitment to the growth of people. The commitment is what transforms a promise into reality. आप जो भी वादा करते हो अपने टीम के साथ में, आपको देखना है कि उस वादे को आप निभाते हो, right? Fulfill your commitment. Right now, servant leaders are committed to the personal and professional development of everyone on their teams. जो टीम मेंबर है उनकी जिम्मेदारी का, ग्रोथ की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? एक लीडर के ऊपर है. तो लीडर शुड बी कमिटेड कि नहीं, मेरे आदमियों की ग्रोथ मेरी जिम्मेदारी है. मैं ये आई हैव टू सी दैट व्हेन आई ग्रो माय पीपल आल्सो ग्रो अलोंग विथ मी. So that there should be a high level of commitment to develop your people. Make sure that you are using training needs assessments to understand their developmental needs and give them the skills they need to do their jobs effectively. अपने को अपने जो टीम मेंबर्स है उनको डेवलप करना है. उनको डेवलप करने के लिए अपने को क्या करना है? उनका नीड एनालिसिस करना है. अपने को ट्रेनिंग के नीड्स, उनको किन किन चीजों की ट्रेनिंग की जरूरत है. टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है तो टेक्निकल ट्रेनिंग अपने को देना है. अगर सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग की जरूरत है तो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग अपने को देना है उनको. अपने को माइक्रोसॉफ्ट अपना एक्सेल की उनको ट्रेनिंग चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग देना उनको. तो जिस चीज में अपने को लगता है कि ट्रेनिंग देने की जरूरत है, वो ट्रेनिंग उस एम्प्लॉय को देना और उसको डेवलप करना, ताकि उनकी जो स्किल्स है ना वो अपग्रेड हो जाए और वो काम को बेहतर तरीके से कर सके. एंड ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट देयर पर्सनल गोल्स आर. अपने टीम मेंबर्स के पर्सनल गोल्स क्या है? प्रोफेशनल गोल तो पता है अपने को कि जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो तो है, लेकिन उनके पर्सनल गोल्स क्या है? फाइंड आउट दैट एंड सी इफ यू कैन गिव दोस प्रोजेक्ट्स और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट विल हेल्प देम अचीव दीज गोल्स. यानी कि अपने को उनके पर्सनल गोल्स को भी मदद करने के लिए उनको हेल्प करना है, राइट? खाली प्रोफेशनल नहीं, इवन पर्सनल लाइफ के अंदर भी अपने को उनको मदद करने की. देन बिल्डिंग अ कम्युनिटी. द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टू डू विथ बिल्डिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर, अ सर्वेंट लीडर. बिल्डिंग कम्युनिटी टुगेदर. देन यू कैन डू दिस बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू इंटरैक्ट विथ वन अनदर अक्रॉस कंपनी. यानी कि अपने को क्या करना है? पूरी कंपनी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी देना है लोगों को कि लेट देम इंटरैक्ट विद वन अनदर क्रॉस, राइट? एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट वाले से बातचीत करना, जो नहीं करते हैं. कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि सब अपने अपने डिपार्टमेंट वालों के साथ में ही बातचीत करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट वाले से बात नहीं करते. लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना है? क्रॉस कल्चर. यानी कि अपने को अपने डिपार्टमेंट वालों से भी बात करनी है, इंटरैक्ट करना है, तो दूसरे डिपार्टमेंट वालों से भी इंटरैक्ट करना है. एक ओपन फोरम बनाना है कंपनी के अंदर. नाउ फॉर इंस्टेंस,
Now you could organize social events such as team lunches and barbecues, design your workspace to encourage people to chat informally away from their desk, and dedicate the first few minutes of meetings to non-work related conversations. अपने को लोगों को थोड़ा फ्री भी छोड़ना है, लेकिन जो उनका डेस्क है, जो काम की एरिया है, वहां पे नहीं, थोड़ा सा बाहर अवे फ्रॉम द डेस्क अपने को उनको थोड़ा इनफॉर्मल भी छोड़ देना है. तो लेट देम डिस्कस फॉर फ्यू मिनट्स. उनको टाइम लिमिट सेट कर देना है कि 5-10 मिनट है कि आप लोगों के पास में आप कुछ भी बात कर सकते हो, राइट, अदर देन योर फॉर्मल टॉक्स. तो encourage people to take responsibility for their work and remind them how what they do contributes to the success and overall objectives of the organization. So you have to encourage the people, right? By building a good community, you have to encourage the people to take the responsibility. जिम्मेदारियां का एहसास दिलाना है लोगों को कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये काम को करना आपकी जिम्मेदारी है. रिमाइंड देम ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स देयर वर्क, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वो उनको याद दिलाना है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है. कंट्रीब्यूट एंड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट. और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है दैट वी हैव टू अकम्प्लिश टुगेदर, यानी कि सब डिपार्टमेंट वाले, जितनी भी डिपार्टमेंट है, चाहे परचेस डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, कितने सारे एचआर डिपार्टमेंट है, कितने सारे डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर, तो सब डिपार्टमेंट को मिलके ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर उठा सकते हैं. यू कैन टेक योर ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल बाय बिल्डिंग अ गुड कम्युनिटी इंटरनली इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन. और ये एक अच्छे लीडर का ही काम है. सो यू आर अ सर्वेंट लीडर व्हेन यू फोकस ऑन द नीड्स ऑफ अदर्स बिफोर यू कंसीडर योर ओन. The servant leader focuses the needs of others before their own needs. It's a longer term approach to leadership rather than a technique that you can adopt in specific situations. So it is a long term process. यानी कि long term relationship अगर अपने को बना के रखनी है अपने टीम मेंबर्स के साथ में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे जो अपने कलीग्स हैं उनके साथ में, अगर लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए अपने को, तो वी हैव टू फोकस ऑन देयर नीड्स फर्स्ट, राइट. So therefore you can use it with other leadership styles such as transformational leadership. यानी कि transformational leadership जो है ना, बहुत ही एक पावरफुल लीडरशिप स्टाइल है, जो जहां पे इट इज रेगुलरली यूज, डेली यूज में आता है ये भी चीज. तो उसके साथ साथ जैसा हमने बताया था, सो सर्वेंट लीडरशिप इज अ पैरेलल, वो पैरेलल चलता है. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप चल रहा है तो उसके साथ साथ में पैरेलल अपना चलता है सर्वेंट लीडरशिप, right. So it goes parallel with all the style of leadership. Servant leadership moves along the side of all the style of leaderships, right. So servant leaderships are likely to have more engaged peoples. एंगेजमेंट ज्यादा रहता है, लोगों को एंगेज ज्यादा करते हैं, काम में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, फोकस ज्यादा रहता है, एंड एंजॉय बेटर रिलेशनशिप्स विद टीम मेंबर्स. और हम सबके साथ में, सब टीम मेंबर्स के साथ में रिलेशन जब अच्छा होगा तो वी कैन एंजॉय ऑल्सो, सक्सेस को हम एंजॉय कर सकते हैं. एंड अदर स्टेक होल्डर्स, दैट लीडर्स हु डोंट पुट द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स बिफोर देयर ओन. यानी कि सबके साथ में स्टेक होल्डर्स, यानी कि अपने सब जितने भी कलीग्स है, कस्टमर्स है, सबके साथ में वेंडर्स है, सबके साथ में अच्छा रिलेशन बनाते हैं, राइट. So what is the job of a leader? बहुत सिंपल है. Perhaps the job of a leader is to help their followers succeed. After all, managers don't win games, teams do, right? And generals don't win wars, armies do. Simple formula है. So this is the philosophy behind servant leadership. Your job as a leader is to serve the people who follow you, to give them what they need, whether it's motivation, project management tools, or even vada pav for breakfast, in order to achieve their goals. So it is your leader's responsibility to fulfill the needs. अगर किसी का कोई डिमोटिवेट हो गया, राइट, किसी का नेगेटिव थॉट है या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इंसान डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इट इज अ लीडर्स ड्यूटी टू मोटिवेट अगेन, उनको मोटिवेट करना, उनको चार्ज करना. So what they need, मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन दो, इंस्पिरेशन चाहिए तो इंस्पिरेशन दो, वड़ा पाव चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, क्या चाहिए खाने को तो वो लाके दो, खाओ उनको, लेट देम एंजॉय, उनकी नीड, उनकी जरूरतों को पूरा करो, एंड हेल्प देम टू अचीव द गोल्स.
the stages of a team, and the roles of a leader. The servant leadership model is, of course, not the only model of leadership. It is one among many. एक ही है, छोटा सा पैरल जो चलता है, बस वही है. So it's instructive to look at a number of situations and examine what your team will need in each. Now इसमें क्या रहता है? Now every day, every situation is different for you. You have to examine the situations. हर रोज जो नीड है ना वो चेंज होगी. टीम मेंबर की जो जरूरत है ना चेंज होगी. You have to see कि आज क्या जरूरत है. आज मोटिवेशन की जरूरत है, आज मोटिवेशन दो. आज नॉलेज की जरूरत है, नॉलेज दो. आज ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग दो. राइट? आज कुछ प्रैक्टिकल अपने को एग्जांपल सेट करना तो प्रैक्टिकल एग्जांपल सेट करके दो. सो व्हाट यू रिक्वायर टुडे, राइट? तो उस हिसाब से अपने को उनको वो चीजें देने की, डेली, डे टू डे बेसिस. दैट वे वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट सर्वेंट लीडर इज and when it's right for your team. And arguably, if you are consistently employing a leadership style that meets your team's needs, then you are constantly surviving them, right? अगर constantly, अगर आप इसको unknowingly अगर आप कर भी रहे हो, ये उनकी जरूरतों को पूरा कर भी रहे हो unknowingly, तभी भी when you're fulfilling their needs, so it is good. Constantly you are serving them. So new leader, new team, new leader. A good place to start is where new teams begin. At the beginning, a new team comes together and they have a new team leader. That is you, right? Remember, that is you. So your job is to get them working together as quickly and as efficiently as you can. So उनको क्या करना है? Your job is to get them working together. एकदम नया टीम मिला है, फ्रेश टीम मिला है, तो आपके लिए टीम नया है और टीम के लिए लीडर नया है, तो इमीडिएटली आप जो बोलोगे वो करेंगे. तो इमीडिएटली जो है स्किल है अपना लीडरशिप का, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो. मेक देम वर्क टुगेदर. सबसे पहला फोकस इज द सर्वेंट लीडर का जो फोकस है वो कहां पे है? वर्किंग टुगेदर, नॉट ऑन द रिजल्ट. याद रखना, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा. जब साथ में मिलके काम करेंगे ना तो रिजल्ट तो आना ही आना है, राइट? सो वर्किंग टुगेदर इज इंपॉर्टेंट. एज क्विकली एज इफेक्टिवली यू कैन. उनको सबसे पहले एक धंधे पे लगा दो, काम पे लगा दो, एकदम एक साथ. सो दिस मीन्स बीइंग वेरी क्लियर विथ ईच पर्सन व्हाट देयर टास्क इज एंड हाउ दे नीड टू गो अबाउट इट. नया इंसान है, नया टीम है, तो उनको पहले से ही जिम्मेदारियां क्लियरली समझा देने का कि हर एक इंसान की क्या क्या जिम्मेदारी है, हर एक टीम मेंबर को क्या क्या करना है, क्या टास्क पूरा करना है और उनको क्या जरूरत है करने की, वो समझा देने का पहले ही. सो व्हाट योर टीम नीड्स मोस्ट एट दिस स्टेज इज क्लियरिटी. जो नया टीम है उनको क्लियरिटी चाहिए, काम करने को का क्लियरिटी, किस काम को कैसे करना चाहिए और उस काम को करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो क्लियरिटी एकदम साफ होनी चाहिए. गोल शुड बी क्लियर, विजन शुड बी क्लियर. देन कॉन्फिडेंस. तो लीडर जो है ना वो हाईलाइट करता है अपना कॉन्फिडेंस कि मेरे को भरोसा है अपने आप पे और मेरे को भरोसा है अपने टीम मेंबर के ऊपर. तो शो योर कॉन्फिडेंस एंड शो योर कॉन्फिडेंस इन अदर्स ऑल्सो एंड द फीलिंग्स that they can be useful. तो उनको ये अपने को एहसास दिलाना है कि आप लोग बहुत ही एक जिम्मेदार इंसान हो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस टास्क के लिए, राइट? तो ये आपको उनको फीलिंग दिखानी है. Then so the way that you are delivering servant leadership at this early stage is by providing a safe space for people to start to contribute. यानी कि बेस्ट टाइम है. अगर नया बंदे हैं, नया टीम है, तो उनके लिए, आपके लिए टीम नया है तो टीम लीडर भी नया, बराबर? तो आपके पास में ये राइट टाइम है शो योर सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल. Then this also gives your team members a chance to get the measure of one another and to start building some working relationships. तो टीम वाले भी जब देखेंगे कि हमारा लीडर जो है ये अपना डिस्प्ले कर रहा है, ये अच्छा डिलीवरी कर रहा है, ऐसे सर्वेंट लीडर का अपना अच्छा एग्जांपल, तो वो भी आपस में उनका तालमेल भी अच्छा. Creating process and practices. Creating processes and practices. Something is going wrong.
Hope everything is okay. I'm visible to all and I'm audible to all, right? Fine. So creating processes and practices, a pragmatic leader. As the social tensions finish playing out, you will start to notice the team becoming more effective. Now, first let us understand the pragmatic leaders are practical thinkers, right? Practically सोचने का जो हो सकता है वो हो सकता है, जो नहीं हो सकता है वो बिल्कुल नहीं हो सकता है. So be a pragmatic leaders are practical thinkers. They focus on the processes behind any task, right? Initiative or goal. Their top priority is to figure out how the team is going to get things done. कि किस तरह से काम होगा, that leader knows practically. Practical बनना बहुत ही जरूरी है. प्रैक्टिकल थिंकर होना बहुत जरूरी है. जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे ना, तब तक हम उन चीजों को अचीव नहीं कर सकते. जो इनप्रैक्टिकल चीजें सोचते हैं, इनप्रैक्टिकल चीजें यानी कि हवा में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है ना, तो दे डोंट नो नथिंग. वो कुछ कर नहीं सकते. दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. तो जो प्रैक्टिकल थिंकर्स है उनको पता है कि ये चीज जो है वो ऐसा ही कर सकते हैं. सो दे नो द प्रोसेस. तो प्रोसेस को अपने को फॉलो करना है. सो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस. प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे ना, तभी अपना रिजल्ट जो है वो अच्छा रिजल्ट आएगा अपना. So you will also see people becoming far more confident in their individual roles. At this point, you want to serve them well by interfering too much, and they don't need you to offer much by way of instruction. Now, हम लोग एक इस ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे, जहां पे अपने को अपने टीम को डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट? वो अपना काम अपने आप ही करते रहेंगे. बस अपने टास्क देने की जरूरत है, भाई ये टास्क को पूरा करना है. सो दे नो प्रैक्टिकली कि अभी किस प्रोसेस को फॉलो करना. तो वो प्रोसेस को अपने टीम मेंबर फॉलो करते हैं और वो अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं. वहां पे अपनी जरूरत नहीं पड़ती है. उनको कुछ तकलीफ होती है और दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, दे आर मोस्ट वेलकम टू contact their leader. So leader is always available for them to help them. So that what does the servant leader do at this stage? You find and implement the practices and processes that will support your team in doing their work even more effectively. यानी कि अभी हम लोग एक प्रैक्टिकली एक प्रोसेस को बना के रख देंगे और प्रोसेस को अपन क्या करेंगे, उस अपने जो टीम मेंबर है उनको बता देंगे कि इसी प्रोसेस में अपने को काम करना है. राइट? और उसको हम लोग सपोर्ट भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम. तो अपना काम जो है वो बहुत ही इफेक्टिवली हो जाएगा अपना. Often this can include helping people connect with colleagues who can advise them in their work. So this includes the connectivity with the other colleagues also. बहुत सारे advices भी आएंगे काम करते करते. कोई प्रोसेस के अंदर चेंजेस लाना है तो we can bring some changes, alternate करना है तो alter भी कर सकते हैं. Right? So support अच्छा मिलता है अपने को. So therefore a big part of servant leadership at this stage is creating and strengthening the cross links among team members which will help optimize the team performance. अब यहाँ पे जो बड़ा जो पार्ट आता है सर्वेंट लीडरशिप का है, वहाँ पे क्रॉस लिंक यानी कि जो है अपने को इंटर डिपार्टमेंट्स के साथ में मिलके काम करना है. खाली अभी नाउ हम लोग फोकस कर रहे थे अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने टीम के लिए. नाउ as the servant leader, now we are taking the responsibility for connecting with all the departments in the organizations. राइट? कि जब सब मिलके काम करेंगे तभी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा. एवरी डिपार्टमेंट इज वर्किंग फॉर वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कोई इंडिविजुअल जो है अपने पर्सनल गोल के लिए काम नहीं कर रहा है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, ऑल डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग फॉर वन सिंगल कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो यू बिकम लाइक अ होस्ट एट अ पार्टी, सर्विंग योर गेस्ट एंड मेकिंग इंट्रोडक्शन सो एवरीवन फील्स वेलकम. तो यानी कि हर एक डिपार्टमेंट वाले के साथ में अपना इंटरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, संबंध भी अच्छे होने चाहिए, रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, ताकि अपना काम जो है वो स्मूथ चलता रहे. क्योंकि एक दूसरे के बिना अपना काम नहीं होता है. एक डिपार्टमेंट अगर सपोज नहीं काम करता है तो दूसरा डिपार्टमेंट सफर करता है. राइट? सो सब डिपार्टमेंट्स वाले को मिलके काम करना है सो दैट द वर्क डजंट सफर. और जो अपना गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट कैन बी अचीव्ड वेरी इजिली एंड टाइमली. तो सर्विंग अ सेल्फ कॉन्फिडेंट टीम, अ सर्वेंट लीडर वंस people have all the contacts they need and have found ways of working that are effective and efficient, there is a little
फॉर यू टू डू। बाद में आपके लिए कुछ काम बचा नहीं है, बस आपने सब जिम्मेदारियां से आप फ्री हो गए। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी आपने क्या किया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके समझ के लोगों के अंदर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट किया। नाउ व्हाट यू हैव डन इनडायरेक्टली, you have created leaders like you. A good leader creates leaders, a bad leader creates followers, right? So don't be a bad leader, don't create followers, but a good leader always create leaders. और जो जब आपने लीडर्स को क्रिएट कर दिया, आपने जैसे अपने टीम मेंबर है, आपके टीम मेंबर में सबके सब आपके सबके अंदर वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, सेंस ऑफ कम्युनिटी आ गया, राइट, सेंस ऑफ डूइंग वर्क आ गया उनके अंदर, और सब मिलके काम कर रहे हैं, तो इट इज मतलब जबरदस्त लॉटरी लग गई आपकी तो, एकदम फर्स्ट क्लास एकदम। देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ। वर्क जो है वो काम जो है वो ऑटो सिस्टम पे हो जाएगा, एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन देयर ओन, तो इफेक्टिव एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, और देयर इज वेरी मच लिटिल फॉर यू टू डू। जब भी वो अटकेंगे वो आपको बोलेंगे, आओ सर मेरा काम देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, राइट? सो यू मे बी टेम्प्टेड टू ट्राई टू लीड, बट ट्रूली यू डोंट नीड टू। You will be tempted, चलो मैं लीड करूं, पर लीड करने की जरूरत नहीं है अपने को। उनको अच्छा अपने को शिक्षा दे दी, अच्छा नॉलेज दे दिया, उनको प्रोसेस बना के दे दिया, सबके साथ में तालमेल अपने अच्छा बना के दे दिया, इंटरेक्शन भी सबका अच्छा कर दिया, फ्री हैंड भी दे दिया, नॉलेज दे दिया, टाइम टू टाइम स्किल्स दे दिया, जो नीड है उनकी नीड रोज फुलफिल कर रहे हैं। तो तब सब अपना हम कर ही टाइम टू टाइम सब हेल्प कर ही रहे उनको, राइट? तो टाइम टू टाइम हम कर ही रहे, टाइम टू टाइम उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस, तो लीड करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सब अपने आप सब काम हो रहा है, ऑटो मोड पे चल रहा है अपना। अगेन समथिंग इज रॉन्ग, जस्ट अ मिनट, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मे बी सम प्रॉब्लम इन द इंटरनेट कनेक्शन, आई थिंक। इंस्टेड leave them to it, छोड़ दो उनके ऊपर, सब करेंगे अपने आप। What an observer will see is individual acts of leadership from different team members at different stages of their work। यानी कि हमने उनको एक बार छोड़ दिया, सब काम समझा के छोड़ दिया उनको, उनके अंदर भी एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करके उनको छोड़ दिया, तो हम देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल अपना टीम मेंबर है, वो अपना हर एक स्टेज में वो अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। The people will step forward when they need to and step back when the task shift। एक टास्क हमने उसको दे दिया, वो अपना करते जाएंगे, जब नया टास्क आएगा तो उस टाइम पे फिर अपने को गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी उनके लिए। So this is the kind of team, wide self-confidence that leaders should dream of। Then cultivate servant leadership skills। Now foresight is your ability to foresee the needs of your followers and the implications of your choice। foresight जैसा हमने बात किया था पहले कि अपना विजन होना चाहिए एक बड़ा, the dream जो है वो बड़ा होना चाहिए, a vision should be clear in the leader's mind, right? I hope it goes without saying that a good leader is an excellent communicator, but as a servant leader you must put your focus on listening। जैसा हमने बताया कि कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे पहला चीज है वो है listening skills। To become a good communicator you have to become a good listener first, right? So servant leadership के अंदर listening skills जो है सबसे नंबर 1 पे आता है। So you must put your focus on listening in order to understand the perspectives and needs of the other people you serve। As a leader you may or may not have authority, but as a servant leader you will never lead to use it। Instead you will rely on your ability to be influential and deploy the craft of high integrity persuasion। So as a leader now आपके पास में authority कितना भी हो, power कितना भी हो, but आपके जो लोग हैं वो अच्छी तरह से काम करेंगे। So now you have ability to influence, यानी कि आपने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया। इन्फ्लुएंस यानी कि आपने उनको अच्छी तरह से सिखा दिया सब काम काज एकदम बराबर से, विश्वास आपने जीत लिया, रिस्पेक्ट उनका जीत लिया, टाइम टू टाइम आप उनकी मदद कर रहे हो, एंड यू आर डिप्लॉइंग हाई इंटीग्रिटी, अपना इंटीग्रिटी भी दिखा रहे हो, राइट? सो अपना जो एक एग्जांपल आप अच्छा एग्जांपल आप सेट कर रहे हो अपनी टीम के आगे। तो सर्वेंट लीडरशिप मस्ट हैव इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड असेस द नीड्स ऑफ द मूवमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्वेंट लीडरशिप के अंदर, वो है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर पीपल। बहुत जरूरी है लोगों को समझना। हम चाहते हैं कि लोग पहला हमको समझे, लेकिन नो, इट इज अ रॉन्ग प्रोसेस। पहला लोग मुझे समझे उसके बाद में आपको समझूंगा, नहीं, इट इज अ रॉन्ग प्रोसेस।
First, try to understand what the other person is trying to say, then make yourself understand. पहला दूसरे को समझने की कोशिश करो, उसके बाद अपनी बात को समझाओ. Then assess the need of the moment. इस moment मेरे को किस चीज की जरूरत है, सामने वाले को अभी किस चीज की जरूरत है, उसकी वो नीड को फिलफिल करना है. Right? Now, as a servant leader, no, it's a time for you to shift from me to us. Right? It is not me, it is us. It is not I have done. It is we have done it. Right? Then servant leaders instill a sense of duty. Servant leaders value everyone's contributions. Servant leaders develop new leaders, not followers. Servant leaders share the workload. Servant leaders move down to help others up. Right? So now you know what the servant leader is. मैंने भी जान लिया कि सर्वेंट लीडर क्या होता है, मुझे भी पता नहीं था. मैं एक आर्टिकल के पढ़ रहा था मैं, तो आर्टिकल के अंदर मुझे ये वर्ड मिला सर्वेंट लीडर. आई वाज वेरी मच एक्साइटेड. बोले ये क्या है, तो उसके लिए ऊपर मैंने काम करना चालू किया, उसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया, पढ़ना चालू किया, तो बहुत कुछ नया नया चीज मिला. तो जब मैं नया नॉलेज जब मुझे मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो इसके ऊपर एक वेबिनार करना चाहिए, क्यों ना मैं ये नॉलेज को भी शेयर करूं. जिनको पता है वो उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो उनको नया नॉलेज मिल जाएगा, सर्वेंट लीडरशिप के बारे में नॉलेज मिल जाएगा. तो वो आप लोगों को आज मिल गया. उसके अंदर नए नई बहुत भी चीजें मिली थी अपने को, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आज सीखने को मिले अपने को. इट वाज वेरी मच एक्साइटेड, वेरी मच फन. मुझे बहुत मजा आया इसके अंदर नया सीखने के लिए. तो जो मुझे पता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों के साथ में अपना नॉलेज शेयर कर दिया. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस टुडेस सेशन, एंड आई thank you all the participants for listening very much patiently, and have a nice day. Take care of yourself and implement this servant leadership style. You know, इसको develop करो, इसके जो 10 principles है उसको adopt करो, उसको implement करो, and you see your growth as well as your team's growth along with your organizational growth. Okay, thank you very much. Bye bye. Take care.